So, are you able to see my screen? Okay. Now see, yesterday we have worked on list, okay? In last class we have worked on list, okay? So now today we will go work operations on list, operations of list, which will work. We have, after creating list, we will work it on the list, which will which are the following for the manipulation, okay? So if you will work on list, then the concatenate, repetition, membership, and list slicing and comparison operators, those are the functions that we will study, okay? So here first of all you will work on concatenating. Concatenating means you will see that it's a simple joining, you can say, okay? Joining of two lists, okay? Joining of two lists. Python allows us to join two or more lists, okay? Suppose that if you have two lists and you want to join both lists, okay, then you will use a plus symbol for adding as an operator, okay, depicted by the plus symbol. Means suppose that list 1 you have created something else, something, list 2 you created, then L3 will be equal to L1 plus L2. Like addition of a two number, it will depict that it will work as L3 is equal to L1 plus L2. So in this manner you will, suppose that here I have given one example, that is list 1 and list 2, that 1 2 1 3 5 7 9 and 2 4 6 8 9 is displayed. When you will work of addition L1 plus L2, then the output will be this, okay? Here I have written in this manner, okay? So list 1 plus list 3, you can write in this manner also. If you want to write print and then L1 plus L2, in this manner also you can write. You can, if you are using here, this is the Python cell that is a Netscape cell, okay? So in one go you can type all the list and then add all the list in a single list. So here same as if these are the numeric list, this is the string based list, all the elements of this list are string, okay? List 3 and list 4 is defined over here, red, green, blue. One thing is that suppose that whatever you will write over here, suppose that here I have explained list 1 3 plus list 4, okay, L4. So if you will write L4 plus L3, then it will be print like reverse order. Like reverse means first of all list L4 will print, then L3 will print, okay? So whatever the list you will define, that will be print accordingly, okay? Suppose that if you have defined L1 and L2, two lists you have defined, in this, in here some numbers are there and here some numbers are, suppose that, okay? Then L3 is equal to L1 plus L2, okay? Then the list 1 will print first and list 2 will print second. Suppose that if you will try and print L2 plus L3, then it will print first and then second, then third. So second and first, the order, whatever the order you feel, you can
print accordingly. If we try to concatenate a list with elements of some other data type error occurs. Okay, अगर different type of a data अगर आप लेते हो तो data list give the error. Like here, suppose that this is list 1, then list 1 is 1 2 3 and str it is a string, here it is not a list. Okay, then this when you will do this, the error will means the both the data type means both the data type. List is a data type in Python, so both the element, both the variables should be list only. Okay, then only it you can concat. Clear? जब आप दोनों ही डेटा टाइप आपके लिस्ट होंगे तभी वो कॉन्कैट हो सकते हैं, मींस ज्वाइन हो सकते हैं. अदर इट विल नॉट वर्क, इट विल गिव द एरर. ओके, सपोज दैट इट विल लाइक here I have taken a string, okay, and here is list, so it will work as it is. Okay, so it will give the error because the both data type are different. First data type is, second data type is a string and first is list, so that's why they will not work out and it will give the error. Clear? Now next, replicating means, suppose that if you want to print a list triple time, 4 time, copy the list same element in as a list, then you can here suppose that I have defined list 1 is equal to save is a string, and list into 4 star we will use for 4. That means it will repeat, it's like a power. When you will work x to the power square, then you will write x into x. It is simple like that only. Okay, suppose that L1 is equal to the element you will define 1 2 3 and 4. Okay, the if you will write like L1 into 5 means 1 2 3 4 5 one time, and again 1 2 3 3 4 5 3 second time, then it will repeat by 5 times. Okay, so this is this means it is a replicating of a number of any list by using asterisk symbol. When you will use this symbol, the list will replicate again and again according to the number of times you will define. Like here it is defined by 4, so it will define accordingly. Okay, now मेंबरशिप ऑपरेटर इन लिस्ट. अभी हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर मीन्स ट्रू. ओके, इफ मेंबरशिप ऑपरेटर डिस्प्लेस ट्रू. ठीक है, क्या डिस्प्ले करता है? ट्रू डिस्प्ले करता है. एंड यहाँ पे इन की बात हो रही है. ठीक है, it will check the element which we will define, it is present in the list or not. Okay, when you will use in operator, then this operator will execute and tell you the element which you will define that is present or not present in the list. In this case, the list, suppose list 1 is equal to c.sc science, then ip, then web app. These three elements which I have defined in this list. Okay, so here ip, I have defined ip in list 1. Okay, ip in list 1 true, and mass in list 1 it is not present, so it is false. You can do like that also. Suppose that you can take an input of any number, any value like a is equal to ip, and then you can write like this, a in list 1. Okay, so then a is equal to ip, so it will work according similar way that it is written over here. So यहाँ पे जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं. एंड यू कैन राइट द सेम, यू कैन यूज द सेम मैनर इन द नेक्स्ट. a is equal to then as a by using variable, and then variable you have to match in list. So in operator is used to check the value it is present in the list or not. Okay, in operator. Now see not in operator over here. Not in operator will list will check, it returns also true if the element is not present in the list, and if it is present in the list then it will give the false. Means it is the reverse of the list which will define over here. List 1 CSC
IP and web. So 3 elements I have defined over here. Now IP not in list, but here it is present in the list. That's why the output will be false, because the IP operator IP has already present in the list 1. Clear? Any doubt? Yes or no? नो सर, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, now see next same as maths not in list. One more example is there, math not in list. Here it is the output will be true. Why? Math is not present in the list, so it will little bit difference in the not in and in. That is only the when the present element is present in the list, it will gives true. Its in operator will gives true and not in operator gives false. Okay, now slicing means printing of a numbers, printing of the elements in order manner as per the requirement, as per the selection basis, how what from where and from which place you want to print, but it will work on the index number. Okay, I have defined a list over here, that is only called slicing. Slicing means printing of a number in selection on the selection basis. Okay, so suppose that here I have explained slicing. So these elements I have defined and assigned in list 1. Okay, so if I will write index number of these elements 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If I will talk about the length of a list, then it will be 7. Okay, so here if I will talk about 2 to 6, okay, when you will define a list, then in that case you will use print and list 1 that I have already explained how to print. Then in the square brackets you will write :6. Okay, that I have already explained. If you want to print the whole list, then you can write list 1 like this also, and you can write list and then within the bracket colon only, then whole list will be print. Okay, so here list 1 to 6 means second element, means CHE से कहाँ तक का 6 तक के एलिमेंट का, मतलब -n-1 that I have already told, तो 5 तक का वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे. मीन्स 4 एलिमेंट्स विल प्रिंट फ्रॉम this to this. Last element means last जो होगा that you will not take. This element whatever the number you will define, whatever the index number will be defined, suppose that n you will define and you have to do the -1, means n-1 till the n-1 will be displayed from element second position. So second position will be from here, second, third, fourth, 5. So here CHE, ENG, IP and CSC will be print. Clear? Now suppose that if I will write like a term index is out of the range. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी पर्सन को नहीं पता है the number of elements are present, how many numbers of elements are present in the list, and then in that case you have the person has written from 2 to 20. Okay, then 20 will not count, but it will work like from starting, from where it will start in second position, second index number it will start, and till the last the number of elements are there 6, 7, 8, 9, 10 before 20. If 20 numbers will present, then it will print all the 20 elements from 2 to 20, and if it is not there less than 20, then it will work accordingly. Okay, so it will work here. So now list 7 to 2, 7 to 2 here, 7 to 2. Okay, first index, second index. Okay, so 7 is the first index and 2 is the first index. तो यहाँ पे क्या आएगा, result will be empty. ठीक है, empty क्यों आएगा, क्योंकि first index will be always be less than the second index number. Okay,
जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर है वो उससे बड़ा छोटा होना चाहिए, ऑलवेज विल बी स्मॉल इफ इट इज नॉट इन द नेगेटिव केस। नेगेटिव केस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बट मैं बता चुका हूँ कि इसमें जैसे -1 से यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, वो भी आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। नाउ हियर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन नहीं किया है, तो इट विल बी ऑलमोस्ट इट विल बी बाय डिफॉल्ट 0। अगर कोई भी एलिमेंट किसी प्लेस पे डिफाइन नहीं किया गया है देन इट विल बी 0, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स नंबर विल बी मिसिंग, दैट मीन्स इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू द 5, मीन्स 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तो बता ही चुका हूँ मैं कि n-1 होता है, तो इट विल बी गोज टिल 4, ठीक है। नाउ स्लाइसिंग विद गिवन स्टेप साइज, ठीक है। अब जैसे स्टेप साइज भी हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 3 स्टेप्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। 1 इज स्टार्ट, सेकेंड 1 इज स्टॉप and third one is step, okay. So the indexing means it will be start from 0 and goes to till 6 position, and the gap of each element will be 2. Now see the main exact what with the element which I have defined over here. See 0 1 2 3 4, वो कह रहा है 2 to 6 के बीच में सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा, सॉरी 0 to 6 के बीच में सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा, मैथ्स, देन केमिस्ट्री, CHE, देन IP, ओके। तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं, कहाँ गया, ठीक है। नाउ सी 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, और वहाँ पे तो n-1 होता है, तो वो काउंट नहीं करेगा, 5 काउंट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज 6 एलिमेंट होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट विल प्रिंट ओनली 3 एलिमेंट्स ओवर हियर, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि व्हाटएवर द इंडेक्स, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IP, CSE। अब देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि फ्रॉम लास्ट हमने बताया था कि -1 से स्टार्ट होगा और -6 इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि -6 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। सो द एलिमेंट एट इंडेक्सिंग -6 -5 -4 -3, ठीक है, आर स्लाइस्ड, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी वर्क अकॉर्डिंग, तो यहाँ से पीछे से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेगा, जो भी वर्क लेगा, फिजिक्स, इंग्लिश, IP, इसका अगर मेन एलिमेंट देखें तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। यहाँ से देखिए, देखो यहाँ पे फिजिक्स तक लिया, ठीक है, -6 से और कहाँ तक लिया, फिजिक्स तक, -1 तक, मतलब स्टार्टिंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IP, CSE, 6th एलिमेंट विल नॉट डिस्प्ले, ठीक है। -1 एलिमेंट, क्योंकि -1 तो यहाँ से होगा ना रिवर्स ऑर्डर में। एक मिनट इसको रख करता हूँ, सकते हैं कैसा, हमारे पास फोन आ रहा है कि मम्मी मतलब नाउ सी, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो वो कह रहा है -6 से यहाँ से और -1 तक, -1 तक तो -1 ये देखो -2 तक है, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट मतलब यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, now कहाँ से, -6 से लेकर और -2 तक, तो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड IP, ठीक है। ऑर्डर जो रहेगा वो स्टार्टिंग से एंड तक ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि माइनस में हम इधर से प्रिंट करना स्टार्ट कर दें, नो, इट विल वर्क अकॉर्डिंगली, इट विल वर्क फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे -2, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 0 है, ये 0 है और ये 2 है, मतलब पूरी आपको लिस्ट यानी कि 0 से लेकर सारी लिस्ट, होल लिस्ट विल प्रिंट, बट
द स्टेप ऑफ 2, गैप कितना रहेगा 2 स्टेप में रहेगा, तो एक एक गैप करके वो प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स विल प्रिंट बाय इन गैप ऑर्डर, ठीक है। अब तो वही चीज यहाँ पे स्टेप वाइज की -1 की बात हो रही है, ठीक है। जब हम स्टेप -1 को देते हैं, अब देखो यहाँ पे समझने की चीज है, व्हेन यू विल स्टार्ट 0, ठीक है, 0 एंड टिल लास्ट, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर हमने बताया था कि अगर कोलन में कोई वैल्यू नहीं है देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम होल लिस्ट, ठीक है, बट द स्टेप इज -1। अब स्टेप क्या है यहाँ पे -1 है, द स्टेप इज व्हिच आई हैव गिवन -1। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, -6 एंड देन -7। ये उल्टा हो जाएगा केवल इस केस में। लिस्ट इन द ऑर्डर विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इस केस में जो ऑर्डर प्रिंट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा एंड वर्क अकॉर्डिंगली। समझ में ये चीज। अब कंपेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड यहाँ पे हमने क्या कहा कि लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 4 नहीं, सॉरी, लिस्ट 1 इज इक्वल टू क्या लिस्ट 1 लिस्ट 2 के इक्वल है। तो इस केस में जो वैल्यू है, जो ऑल द वैल्यूज शुड बी सिमिलर, सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, मींस ऑल द एलिमेंट्स एंड काउंट बोथ शुड बी इक्वल, मतलब 3 एलिमेंट्स दोनों में होने चाहिए और ऑल द एलिमेंट्स शुड बी सिमिलर, मींस 9, 9, 11, 11, 13, 13 लाइक दिस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, L1 इज इक्वल टू 3, L3 नो, एलिमेंट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी काउंट तो सेम है, द काउंट ऑफ द लिस्ट विल बी सेम बट द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्क। फिर L1 इज लेस देन L2, फॉल्स। L1 क्या, L1 जो है L2 से लेस है, नो, ये फॉल्स है। L1 इज लेस देन L3, L1 इज L3 से लेस है, नो, तो काउंट यहाँ पे इक्वल है तो भी लेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है। फिर वो कह रहा है L1, L4 और L3, अब कह रहा है L1 इज ग्रेटर देन L4, सॉरी लेस देन L4, L1 इज लेस देन L4। अब यहाँ पे लेस देन हो गया क्योंकि एक एलिमेंट L4 जो एलिमेंट है, L4 का 9, 11 नंबर इक्वल है बट एक नंबर यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लेस देन L4, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं म्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल और नॉट, ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल का मतलब होता है कि इट विल चेंज और नॉट, हम चेंज कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और कुछ ऐसे ऑपरेशंस। लिस्ट आर म्यूटेबल मींस दैट कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएटेड, हम लिस्ट को क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। लेट अस अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं हम लोग। सपोज दैट दिस इज द लिस्ट आई हैव क्रिएटेड एंड अब हमको 0 इंडेक्स नंबर ये है, 1 इंडेक्स नंबर ये है, 2 इंडेक्स नंबर ये है, 3, 4, 5 and 6, okay। now suppose that if you want to change any value of any index number, किसी भी इंडेक्स नंबर पे आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे लिस्ट 2 यूज किया गया है तो इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, म्यूजिक, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा, लिस्ट की सेकेंड लोकेशन पे क्या चला जाएगा, म्यूजिक, ओके। इट विल गोज टू रिप्लेस बाय CHE, रिप्लेस बाय म्यूजिक। तो नाउ लिस्ट 1, so मैथ्स, फिजिक्स, म्यूजिक, इंग्लिश, IP, CSE एंड PE फिजिकल एजुकेशन, इसकी जगह जब हमने दोबारा इस लिस्ट को प्रिंट किया तो क्या हुआ, CHE की जगह क्या आ गया, म्यूजिक आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं लेंथ फाइंड करने की। लेंथ फाइंड तो हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करनी हो देन यू विल यूज लेन फंक्शन, ओके। द आउटपुट ऑफ दिस लेन इज इन द इंटीजर फॉर्म, तो हम जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू लेन लिस्ट 1, whatever the list name you can define and then you can print the list L, ठीक है। तो आप लिस्ट जब प्रिंट करोगे L की तो the number of count will be printed whatever it will। now अब अगर आप इट क्रिएट्स एम्प्टी लिस्ट, अब यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिस्ट स्टार्टिंग में क्रिएट करना बताया था आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट 1 प्रिंट किया तो ये एम्प्टी प्रिंट होगी, ठीक है। नाउ
str1 string 1 AEIOU वॉवेल्स लिस्ट हमने काउंट करी, लिस्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सीक्वेंस फाइंड कर देगा, सीक्वेंस में लगा देगा इसको, ठीक है। सीक्वेंस मतलब अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने क्या किया, या स्ट्रिंग हियर, एक इसमें हमने एक सेंटेंस काउंट, सेंटेंस भरा, व्हाटएवर सेंटेंस यू विल, तो फिर हमने लिखा list 1 इज इक्वल टू लिस्ट str1। तो यहाँ पे आउटपुट, द आउटपुट व्हाटएवर यू विल गेट that will be a whatever है, सपोज हमने लिखा रामलाल, ठीक है। then you will put it in the string this like this list and then string, जैसे यहाँ पे क्या, it will create a list, मतलब लिस्ट का जो आउटपुट होगा will be like this R A M L A L, like this you can create a list and print the list, ठीक है। तो उसको वो सेग्रीगेटेड कर देगा। नाउ अब क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट में सपोज हमें एलिमेंट इंक्रीज करना है। इफ आई वांट टू इंक्रीज एलिमेंट इन अ लिस्ट, मींस एक एलिमेंट ऐड करना है, वन मोर एलिमेंट आई वांट टू लिस्ट ऐड इन द लिस्ट, देन हियर लिस्ट क्या किया हमने 10, अभी लिस्ट में क्या है 10 20 30 40, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज करेंगे अपेंड, ठीक है। क्या यूज करेंगे, अपेंड यूज करेंगे। इन बाय यूजिंग अपेंड यू कैन increase a list, or whatever the element you want to add in the list, that will be the element list, जिस भी लिस्ट में ऐड करना पड़ चाहते हो उसका name of the list dot append then 50 whatever the name, तो क्या होगा, ये इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा जो भी हम एलिमेंट इनपुट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप और एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज 50 60 लाइक दिस आल्सो, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से होता है, सिंगल एलिमेंट जो आप अगर सेम लिस्ट में ऐड करना पाओगे तो उसके लिए आपको सिंगल एलिमेंट के लिए आपको अपेंड यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस यहाँ। बट इफ यू विल मल्टीपल एलिमेंट आप अगर ऐड करते हो तो वो इस तरीके से एक मल्टीपल लिस्ट जनरेट हो जाएगी विद इन द लिस्ट, इट विल जनरेट अ मल्टीपल लिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है। बट इफ यू वांट टू ऐड अ मल्टीपल एलिमेंट्स इन द लिस्ट, देन यू विल यूज एक्सटेंड, ठीक है। अगर इस तरीके से ऐड करना चाहते हो तो यू कैन यूज लाइक दिस वे, और सिंगल एलिमेंट करके आप कई बार अपेंड 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 लगा के मल्टीपल एलिमेंट्स यू कैन एंटर। बट इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट बाय इन अ वन गो, देन यू कैन यूज एक्सटेंड, ठीक है। इट इज एन आर्गुमेंट, ठीक है, इट इज एन आर्गुमेंट, तो हम उसको यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे, 40 50 यहाँ पे मैं डिफाइन किया, देन एक्सटेंड, देन लिस्ट 2। तो हमने यहाँ जैसे लिस्ट 1 में लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब इस तरीके से आप अगर लिस्ट, ये एलिमेंट्स आप पहले लाना चाहते हो लिस्ट में, जैसे यहाँ पे 10 20 30 40 लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40 30 सपोज 30 मान लेते हैं, 30 तक लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं, 40 50 लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं। सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट दिस फर्स्ट, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड देन लिस्ट 1, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 40 50 30 20 10, इस तरीके से, नहीं रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, सॉरी, 10 30 10 20 30 30 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को एक्सटेंड प्रिंट कर देंगे, हम लोग इसको एक्सटेंड एज एक्सटेंड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट हम लोगों का whatever the, suppose that if you want to insert any element between the list, in the list, ठीक है, between the list, तो हम उसके लिए उसको हम इंसर्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखते हैं लिस्ट डॉट लिस्ट नेम हम लेते हैं डॉट इंसर्ट सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, लिस्ट डॉट इंसर्ट विद इन द ब्रैकेट इंडेक्स नंबर एंड कॉमा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर, अभी जैसे यहाँ पे लिखा डिफाइन किया है लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2 कॉमा 25, ठीक है। तो सेकेंड इंडेक्स नंबर पे 25 आपको फीड करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे C 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स नंबर पे क्या फीड हुआ 25,
5 देन 30 और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 के स्टार्टिंग में ही 0 पे 5 इंडेक्स नंबर फीड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट विल प्रिंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, 5 10 20 25, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर पे क्या गया 5, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ काउंट। ठीक है, अब किसी एलिमेंट सपोज एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर एलिमेंट इज रिपीटेड इन द लिस्ट, तो उसके लिए हम लोग काउंट यूज करते हैं, सिंपल लिस्ट और देन काउंट और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आप देना चाहो दैट विल बी प्रिंट एंड इट विल द आउटपुट विल बी इन इंटीजर फॉर्म। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे लिस्ट डॉट काउंट 10 देन आउटपुट विल बी 3, लिस्ट डॉट 90 है ही नहीं देन इट विल गिव 0। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स की। इफ आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स नंबर, ठीक है, अगर हमें किसी वैल्यू का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, अकरेंस फाइंड करनी है, इट विल टेल यू द फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस मतलब पहली बार जब वैल्यू प्रिंट हो, किस लोकेशन पे प्रिंट हुई वो वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 20, 20 कहाँ प्रिंट हो रहा है, सेकंड लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन पे, तो आउटपुट क्या आया फर्स्ट। 90 नो लोकेशन, वैल्यू एरर, 90 इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, नाउ रिमूव। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसमें फर्स्ट इंडेक्स ही बताएगा, सेकंड इंडेक्स नहीं बताएगा, क्योंकि 20 यहाँ पे आया तो आपको सेकंड इंडेक्स नहीं लिखना है, फर्स्ट इंडेक्स ही लेना है। ठीक है, नाउ रिमूव। रिमूव द गिवन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अगर कोई एलिमेंट हमें रिमूव करना है देन यू कैन यूज रिमूव। द मेथड विल ऑल ऑफ फंक्शंस विल बी द सेम, रिमूव देन एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारा 30 रिमूव हुआ, लिस्ट के बाद हमारा आउटपुट देखो 30 नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट विल, फर्स्ट अकरेंस विल बी रिमूव, ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट अकरेंस, इस टर्म को ध्यान रखना। ठीक है, जहां पे फर्स्ट अकरेंस आएगी इट विल रिमूव। ठीक है, नाउ पॉप। पॉप विल डिलीट द एलिमेंट सेम एज रिमूव। ठीक है, बस क्या करेगा, ये इंडेक्स नंबर पे वर्कआउट करता है। ठीक है, इट रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एंड पैरामीटर ऑफ द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इफ नो पैरामीटर इज गिवन देन द रिटर्न्स द एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। अगर कोई पैरामीटर नहीं दिया गया तो लास्ट एलिमेंट से रिमूव कर देगा। जैसे हमने लिखा पॉप 3, तो पॉप 3 पे क्या है 0 1 2 3, so it will give 40। ठीक है, तो अब जब लिस्ट प्रिंट करी हमने तो 40 एलिमेंट में नहीं है, फिर हमने क्या पॉप ब्लैंक, तो 60 यहाँ पे जो हमारा रिमूव है, ये 60 रिमूव हो गया, लिस्ट क्या आया 0 ब्लैंक, मतलब सॉरी लास्ट एलिमेंट रिमूव हुआ। अब बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स मीन्स इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स द लिस्ट, जो भी लिस्ट है हमारी वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, उल्टा है ना, तो यहाँ पे ये अगर देखो लिस्ट 1 है, रिवर्स किया 99 98 89 रिवर्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हुआ तो यहाँ पे ये लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया, ये एलिमेंट लास्ट पे फर्स्ट में और ये वाला लास्ट में चला जाएगा, इसी अकॉर्डिंग वो रिवर्स हो जाएगा। नाउ सॉर्ट। सॉर्ट मतलब अरेंज करना। ठीक है, सॉर्ट मेथड विल बी अरेंज। सॉर्ट जैसे आप लगाओगे तो इट विल अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी का ऑर्डर होता है वही यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो सॉर्ट डॉट सॉर्ट यूज करेंगे, लिस्ट नेम एंड देन सॉर्ट। सॉर्ट मेथड विल रिवर्स द ऑर्डर। ठीक है, देन लिस्ट। अब जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इन ट्रू मैनर। ट्रू मैनर मतलब प्रॉपर मैनर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा 99 89 प्रॉपर मैनर, नंबर के फॉर्म में रिवर्स ट्रू यूज करेंगे, रिवर्स जो होगी ट्रू होगी। ठीक है, अगर फॉल्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज होगा कहीं पे। ठीक, देन मिनिमम, मिन फाइंड करने, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मिन, लिस्ट नेम, द मिनिमम वैल्यू विल डिस्प्ले, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू विल डिस्प्ले। ठीक है, ये तो छोटे छोटे फंक्शंस हैं। देन सम, सम विल डिस्प्ले। अगर आपको सारे एलिमेंट्स का सम करना है यू विल जस्ट राइट सम एंड देन लिस्ट नेम। ठीक है, देन नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का क्या करना है, जैसे आपको नेस्टेड इज, अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 और 4th पे ये लिस्ट है, 5 पे ये लिस्ट, 5 6। ठीक है, तो 5 पे 4 है, 6 पे। अब अगर हम लिस्ट 4 यूज करते हैं, ठीक है, सपोज दैट लिस्ट 1 4, तो ये पूरा इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, इसका पूरा इंडेक्स नंबर का लिस्ट नंबर है 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें कि
जैसे हमने इसने कहा 4 1, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लिस्ट 4 लोकेशन 4, ठीक है। आप समझो इसको, लोकेशन 4 मतलब लिस्ट का 4th एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब अगर मल्टीपल लिस्ट है, यहाँ पे जैसे मल्टीपल लिस्ट है, लिस्ट का 4th लोकेशन एंड फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 0 and 1 मतलब 7, तो आउटपुट विल बी द 7, ठीक है। समझ आइए। नाउ लिस्ट मैनिपुलेशन, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म वेरियस लिस्ट। अब मेन्यू ड्रिवन थोड़ा समझ लो। अपेंड एन एलिमेंट, इंसर्ट करना है एलिमेंट, अपेंड ए लिस्ट, फिर मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, फिर शॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो प्रोग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले एक लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है, चॉइस 0, वाइल के साथ बनाया है ये प्रोग्राम, वाइल ट्रू, जब ट्रू होगा तो ये प्रिंट अगर वन, जो भी हमें ऑप्शन चूज करना है इसमें से चूज करेंगे। इफ चॉइस विल बी इंट, अब यहाँ पे चॉइस क्या होगी, इनमें से कोई चॉइस हो जाएगी। 1 है, एंटर योर चॉइस 1 to 10, ठीक है। जैसे सपोज 1 इनपुट किया हमने, तो यह एलिमेंट एक्सेस जो है वो यहाँ पे आएगी। एलिमेंट इंट इनपुट, एंटर द एलिमेंट टू बी अपेंडेड, ठीक है। और लिस्ट तो हमने क्या किया, वो अपेंड माई लिस्ट डॉट अपेंड, और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब अगर ये चॉइस नहीं है तो एल इफ यूज करेंगे, एल इफ चॉइस 0 to इक्वल टू 2, और फिर नेक्स्ट, फिर हमने इस फंक्शन में दूसरे फंक्शन यूज किया, हमने यहाँ पे पोजीशन और एलिमेंट ये इनपुट कराई है, यहाँ पे एलिमेंट पोजीशन यहाँ पे इनपुट कराई और एलिमेंट यहाँ पे इनपुट कराया, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगी, हमने बस प्रोग्राम में चीजें ऐड कर दी हैं, ठीक है। फिर एलएफ थर्ड पोजीशन के लिए एंटर द लिस्ट ऑफ अपेंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे फंक्शंस एक ही बार में यूज कर लिए, ठीक है। तो व्हेन यू विल डू दिस प्रोग्राम, तो आपको एक एक चीज पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट में देखो ब्रेक यूज किया, अगर चॉइस इसके अलावा नहीं है तो ब्रेक, ठीक है। और फिर ब्रेक एल्स प्रिंट चॉइस इज नॉट वैलिड एंड देन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पे ch इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू प्रोग्राम को शॉर्ट आउट किया, और फिर हमने आप दो चॉइसेस समझाएंगे। ऐसे आपके पास 11 चॉइसेस आर देयर, यू कैन कंटिन्यू अकॉर्डिंगली। आप फर्स्ट अब इन्हीं फंक्शंस को आप यूज करके हम प्रोग्राम को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, या फिर कितने भी बड़ा फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, फंक्शन का मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ लिस्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, ठीक है। सो in this topic you have learned how to create a list, how to empty the list, ठीक है, how to print empty list, how to take input, concat, replicating, membership, slicing, comparing, traversing, accessing. These the things are which you have learned, ठीक है। In next class we will start from a dictionary, okay. Till time you will prepare this topic in your copy notebook, and then if ask the question if any query, okay. From next term we will start dictionary, okay.